A very good morning to the students. Yesterday, we had finished the first chapter of your textbook English Prose, A Girl with a Basket, penned by William C. Douglas. Today, I will teach you how to explain the passages, how to explain with reference and context. आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पैसेज को एक्सप्लेन किया जाता है विद इट्स रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है और कैसे एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ पैसेज टू शो यू डेमो हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू कॉन्टेक्स्ट और हाउ टू रेफरेंस, कि कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है, कैसे रेफरेंस लिखा जाता है और कैसे एक्सप्लेन किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल टीच यू these types of things. Okay, I'll start. Today I'll take a passage to explain at one station their desire. This is the passage which I'll explain. ये जो पैसेज है जिसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा. I'll explain it with its context and reference. ये पैसेज है जो at one station. The passage number of your book is 5th passage of your textbook, chapter number 1, A Girl with a Basket. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. तो इस पैसेज को हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसका रेफरेंस लिखा जाता है, कैसे इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है और कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है. आई विल टीच यू हाउ टू रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न रेफरेंस. रेफरेंस मीन्स संदर्भ. फर्स्ट ऑफ ऑल we know that how to write a reference of the passage, of the lesson. This passage has been taken or extracted from the lesson A Girl with a Basket. A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. The judge of Supreme Court of America. In this way, we can write the reference of this passage. This passage can be removed by these lines.
have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. William C. Douglas, the judge of the Supreme Court of America. इस तरीके से हम लोग रेफरेंस लिखेंगे. रेफरेंस मीन्स संदर्भ. Then we are heading towards context. How to write context? First of all the children must write it. सभी बच्चों को ये अवश्य लिखना चाहिए. सभी बच्चे अपने अपने टेक्स्ट बुक में, अपने अपने नोटबुक में पहले टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ेंगे कि ये कौन सा पैसेज है. तो दिस पैसेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम एट वन एंड एंडिंग विद डेयर डिज़ायर. ये पैसेज आप लोग लेंगे और इस पैसेज को आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे. देन रेफरेंस इट ऑन योर नोटबुक, और तब इसको आप अपने नोटबुक में क्या करेंगे, रेफरेंस को लिखेंगे. आफ्टर द रेफरेंस वी कैन हेडिंग टूवर्ड्स कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस लिखने के बाद हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट की तरह बढ़ेंगे कि हाउ टू राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी पैसेज. द चैप्टर अ गर्ल विद द बास्केट हैड मेनी पैसेजेस एंड वी कैन राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच पैसेज. हम लोग हर एक पैसेज के अलग अलग डिफरेंस सुटेबल हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल you should write the reference and then we are heading or going towards context. After the reference, we write context. Context means prasang. Context is like a theme of the passage, theme of the chapter. Context points out what will be in the passages or which types of thing will be described in passages. Context वो चीज़ होता है, context वो lines होते हैं जो describe करता है, बताता है कि पैसेज में क्या क्या होने वाला है, पैसेज में कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया गया है, पैसेज में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं. कॉन्टेक्स्ट शोज यू. ये कॉन्टेक्स्ट लिखने का मतलब ही होता है कि आप वो थीम लिखें जो पैसेज में डिस्क्राइब किया गया, जो पैसेज में बताया गया, जो पैसेज को सूट करता हो. एक बार हम लोग फिर पैसेज पढ़ते हैं. एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग वॉज इंटरप्टेड. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. इस पैसेज का हमको कॉन्टेक्स्ट लिखना है. कॉन्टेक्स्ट मीन्स द मेन पोर्शन, द मेन थिंग ऑफ द पैसेज. इस पूरे पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, किस चीज़ के बारे में मुख्यतः बात की गई है, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है. इन दीज लाइन्स द राइटर और ऑथर विलियम सी डगलस describes or says or tells or explains or depicts or points out or delineates
विलियम सी डगलस डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं, सेज बताते हैं, टेल्स कहते हैं, एक्सप्लेन्स वर्णन करते हैं, डेपिक्ट्स डेपिक्ट्स इज यूज व्हेन यू डिस्क्राइब अबाउट द फिगर ऑफ एनीवन, सचित्र वर्णन करना. इट मस्ट बी टेकन वेयर वी कैन यूज अ पिक्चर अबाउट पिक्चर. पॉइंट्स आउट इंगित करना, संकेत करना, डेलिनिएट्स मीन्स वर्णन करना. तो इन किसी भी शब्दों में से आप एक शब्द को चूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं. इन दीज लाइन्स, इस पैसेज में इन पंक्तियों द्वारा द राइटर डिस्क्राइब्स, लेखक वर्णन करते हैं अबाउट द रेफ्यूजी चिल्ड्रन. द थीम ऑफ द पैसेज इज रेफ्यूजी चिल्ड्रन. Who were selling hand woven or handmade baskets and fans. In this way, we can write the context of this passage, that is starting from H1 to their desire. इस तरीके से हम लोग चैप्टर का या पैसेज का, जो पैसेज आपको दिया जाएगा एक्सप्लेन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस करने के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग इस तरीके से, इस वे में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. इन दीज लाइन्स मस्ट बी रिमूव्ड बाय थ्रू दिस पैसेज, through this passage or in this passage. यानी इस लाइन को अगर आपको रिमूव करना है, हटाना है, तो आप इसके जगह पे लिख सकते हैं थ्रू दिस पैसेज और थ्रू दीज लाइन्स और इन दिस पैसेज और इन दीज लाइन्स. इन चारों वर्ड्स, वाक्यों में से आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. द ऑथर और द राइटर विलियम सी डगलस डिस्क्राइब्स, इन सारे शब्दों में से किसी एक शब्द को आप चूज करेंगे और किसी एक शब्द को ही आप अपने कॉन्टेक्स्ट करते वक्त लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू मी अबाउट द रेफ्यूजी चिल्ड्रन, इस पूरे पैसेज में रेफ्यूजी चिल्ड्रन के बारे में बात हुआ है. हु वर सेलिंग हैंड वुवन बास्केट्स, जो लोग हाथों द्वारा बनाए हुए पंखे और टोकरियाँ बेच रहे थे. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. ये इस पैसेज का क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज. सबसे पहले आप लोग सभी लोगों को ये लिख लेना चाहिए. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हाउ टू एक्सप्लेन द पैसेज. कैसे इस पैसेज को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज. Now we will teach or we will discuss about explanation. What is explanation? व्याख्या. Explanation means व्याख्या. Explanation, what is things, what is this, what is explanation? Explanation means how you feel, how you think about the passage. कैसे आप पैसेज के बारे में सोचते हो, पैसेज के बारे में आप क्या जानते हो, पैसेज के बारे में आपका ओपिनियन क्या है. If you want to describe इन विच वे, आप कौन से तरीके से पैसेज को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो. दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन माइंड. ये टोटली निर्भर करता है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, बच्चे इस पे
कहते क्या है, बच्चे को क्या फील होता है इस चैप्टर के बारे में, पैसेज के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन करते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। कहता राइटर कि एक स्टेशन पे मेरे जो बात करने का क्रम था, मैं जो लोगों से बातें करता था हर स्टेशन पे रुक रुक के, वो मेरा क्रम जो क्या किया गया, तोड़ दिया गया। इन दिस पैसेज the writer says that at one station his routine of talking with Indian people was checked or stopped by the some young children। मीन्स एक स्टेशन पे, इस पैसेज में राइटर एक्सप्लेन करना चाहता, बताता चाहता कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग, जो उसका बात करने का क्रम था किसके साथ, विद इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के साथ, वॉज चेक्ड और स्टॉप्ड, रोक दिया गया या व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया, बाय द सम यंग चिल्ड्रन, कुछ छोटे बच्चों द्वारा। द नेक्स्ट लाइन, एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। कहता राइटर कि ज्यों ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा, when he got down, explanation means you can write your own words, you can use your own words to explain the passage। आप अपने शब्दों को explain करने के लिए use कर सकते हैं। when he got down, जब वह ट्रेन से from the train, when he got down from the train, some young children surrounded him like locusts। कुछ छोटे बच्चों ने उसको चारों तरफ लोकस्ट की तरह, टिड्डियों की तरह क्या किया, घेर लिया। They were selling baskets, hand woven reed baskets। Now this must be erased for further explanation। Yeah, locusts, then you can describe after locust here, from here I am writing here, they were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns। These little boys, yeah, these little boys were selling, these little boys were selling, boys or girls and girls, these little boys and girls were selling baskets which were very simple and based on local patterns।
मीन्स ये जो सभी बच्चे थे, जो टोकरिया बेच रहे थे, लड़के और लड़कियाँ, उनकी जो टोकरिया थी विच वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण थी, एंड बेस्ड ऑन लोकल पैटर्न्स, जो वो लोग लोकल, जो लोग वहाँ के स्थानीय थे, जिस तरीके के पैटर्न को वो यूज़ करते थे, उन पे उन्होंने क्या बना रखे थे, फैंस एंड बास्केट्स, टोकरिया और पंखे बना रखे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो। कहता है राइटर कि वो सभी बच्चे अपनी अपनी टोकरियों को ऊंचा उठाए थे। कहता है राइटर कि मैं उनके शब्दों को सुन नहीं सका, उनके शब्दों को समझ नहीं सका, उनके शब्दों को, उनकी भाषा को जानता नहीं था, बट आई नो व्हाट डिड दे वांट, कि वो लोग क्या चाहते थे। all the children held their, or all the children put their articles on their head. The writer says that he did not understand the language of these children, but he was able to understand what the little children wanted. कह रहा है राइटर कि मैं उनकी भाषा तो नहीं समझ सका, बट मैं ये एबल हो गया, ये समझने में सक्षम हो गया व्हाट द लिटिल चिल्ड्रन वांटेड, कि वो छोटे बच्चे क्या चाहते थे, फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहते थे। दिस इज द explanation, reference and context of the passage number 5 of your English textbook Prose, A Girl with a Basket, penned by William C. Douglas. That's it. In this way, or learning these things, we can explain, we can reference and context every passage of the lesson of the chapter 1. Next day, we will learn, or I will teach you short answer type question. Thanks a lot for watching the video.